हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम सबको इतनी अहम शख्सियत से इस्तेफादे का मौका मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये शाम हमारी ज़िंदगी एक अहम शाम होगी और हमारे कुरान के इल्म और दीनी फ़हम में इजाफे का ज़रिया बनेगी। मैं डॉक्टर जावेद ज़मीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वह डयास पर तशरीफ़ लाएँ और अपने इल्म और तजुर्बात से हम सबकी रहनुमाई फरमाएँ। Two aspects Dr. Javed Jamil has एक पहले done, I would like to highlight. Islam is perhaps the only religion in this world where ritual cleansing is most important. Not just important, there is no option at all. There cannot be salat, there cannot be namaz without wuzu. There is no exception for this. There is no excuse for this. You need one farz from or wuzu, and whatever namaz you perform after that goes void. It is of no use. That is the importance of wuzu. That is the importance of ritual cleansing before every act of prayer. You cannot perform wuzu or ghusl early in the morning and go on performing namaz the rest of the day. For every namaz, if you are not in a state of wuzu, you have to perform wuzu, and only then your namaz will be accepted by Allah Almighty. Dr. Saab has written about it and also has delivered lectures about the importance of wuzu, and this importance of wuzu, he is not talking as an Islamic scholar alone, he is talking as a doctor of medicine about how scientifically important wuzu is. Second thing is, after we perform wuzu, we perform salat, namaz. Dr. Saab has written about it and also spoken about salat from the perspective of a medical doctor, not just from the perspective of an Islamic scholar. The Islamic aspect of namaz is different. The scientific aspect of namaz, he tries to throw light on it and shows how complete an exercise namaz is physically and mentally also. These days, yoga is being promoted as the most supreme form of exercise all over the world. We are exporting yoga. But all the time before we started doing this, for the past 1,600 and odd years we have been performing namaz, Muslims all over the world. And every Muslim across the world performs the namaz in the same way. The namaz in Egypt is not different from what it is in Saudi Arabia. And the namaz in India is not different from what it is in America. It's all the same. And every namaz that we perform has got a set of actions physically. And he has thrown light on how important this is, what it does to this body, how complete a form of exercise, just like yoga, our namaz is, if we do 5 times in a day. So, these are 2 additional things which he has done, about which I would like to entertain you, and that's why I am presenting this. Now, I request Dr. Saab to address you after this session. There will be a question and answer session. You will be given a chance to ask questions to him, to clarify your doubts, and you can do it. The ladies and gents both can do it. The mic will be circulated here and also in the ladies section, and they also can interact with the speaker. Alhamdulillah, over to you, Dr. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मोहतरम डॉक्टर जावेद नईम साहब, डॉक्टर इफ्तिखार साहब और यहाँ पर मौजूद मुझे नज़र आ रहा है दूर दूर तक माशाअल्लाह सब बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपसे कुछ इब्तदाई में ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ आज दिन भर का सफ़र रहा तो थकन है, तो कुछ परेशानी सी महसूस हो रही है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मैं इस पूरे लेक्चर को सही से उसका जो तकाजा है उसको पूरा कर सके।
कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि ये वो किताब है जो हमने यानी अल्लाह ने आपकी तरफ यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसलिए भेजी ताकि ये इंसानियत को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए। हज़रात मैं ये कहना चाहता हूं कि अंधेरा बड़ी अजीब और गरीब चीज है, और हकीकत यह है कि अंधेरा कोई चीज है ही नहीं। अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता। जिस तरह लाइट के फोटॉन्स होते हैं, इस तरह अंधेरे के डार्कॉन्स नहीं होते। अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी का नाम है। जब रोशनी गायब हो जाती है तो अंधेरा छा जाता है, और जब रोशनी और किसी चीज के दरमियान कोई चीज रख दी जाती है बीच के अंदर, तो अंधेरा फैलने लगता है। इसी को मैंने कुछ अशार में मैं इत्तफाक से कुछ शायर भी हो गया हूँ थोड़ा बहुत, तो कुछ अशार में भी मैंने बात कही है कि वजूद अपना नहीं रखते अंधेरे, वजूद अपना नहीं रखते अंधेरे, छुपी जब रोशनी फैले अंधेरे। वजूद अपना नहीं रखते अंधेरे, छुपी जब रोशनी फैले अंधेरे। शफक ने आंख क्या खोली जरा सी, शफक ने आंख क्या खोली जरा सी, इधर दौड़े उधर भागे अंधेरे। तो अंधेरा एक ऐसी चीज है कि जिसका ताल्लुक रोशनी के गायब होने से है। अगर आज दुनिया में अंधेरा है, और दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के अंधेरे हैं, दुनिया में जुल्म और ज्यादती का अंधेरा है, दुनिया में अजीब व किस्म की जहालत का अंधेरा है, दुनिया में एक किस्म के अजीब व गरीब अय्याशियों के तसव्वुर का अंधेरा है, दुनिया में एक दूसरे के इख्तलाफात को इस हद तक बढ़ा देना कि वो आपस में जंगों में तब्दील हो जाए, उसका अंधेरा है। हर तरह के अंधेरे दुनिया के अंदर मौजूद हैं, और ये दुनिया के अंधेरे अगर मौजूद हैं उसकी एक वजह यह है कि जो अल्लाह ने रोशनी कुरान के जरिए और तमाम पैगम्बरों के जरिए भेजी, उसको हमारी भी कमियां हैं और दुनिया की भी कमियां हैं कि वो दुनिया तक उस अंदाज में नहीं पहुंच सकी जिस तरीके से पहुंच जाना चाहिए था। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, कि अल्लाह की वो जात है कि जिसने 7 आसमान बनाए तबक तर तबक। मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, क्या तुम्हें अल्लाह रहमान रहीम की इस तख्लीक के अंदर कोई कमी नजर आती है? मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत फर्जिइल बसरा हल तरा मिन फतूर। तो एक मर्तबा अपनी नजर और उठाकर देख लो, क्या तुम्हें कोई फतूर, कोई खामी नजर आती है? सुम्मर्जिइल बसरा कर्रतैनी यनक़लिबु इलैकल बसर खासिय्युन व हसीर। फिर एक मर्तबा नजर उठाकर देखो आसमान की तरफ, और तुम्हारी नजर जलील और पसमानदा होकर वापस चली आए। जब अल्लाह ये आयात बयान कर रहा है, ये आयात पहुंचा रहा है, तो अल्लाह का मकसद ये है कि इंसान को ये एहसास दिलाया जाए कि एक कायनात उसके सर के ऊपर है और एक जमीन उसके पैरों के तले है। जो कायनात उसके सर के ऊपर है और वो इतनी वसी है कि उसकी वसत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि इस कायनात को बने हुए जो साइंसदानों का मौजूदा एक तखमीना है, एक अंदाजा है कि 10⁻⁴ यानी 15 बिलियन ईयर्स पहले ये कायनात तख्लीक हुई। ये एक आम ख्याल साइंसदानों का है। और लाइट की जो रफ्तार होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। उसके बावजूद ऐसी इतनी दूर की जगहें मौजूद हैं कि जहां से लाइट आज तक जमीन तक नहीं पहुंच सकी है। इससे इस कायनात की वसत का अंदाजा लगाइए आप, और कायनात की पॉपुलेशन का अंदाजा किस बात से लगा सकते हैं? कायनात की पॉपुलेशन का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 10⁻12 यानी 10 के आगे 12 सिफर लगा दीजिए, इतनी गैलेक्सीज कायनात के अंदर मौजूद हैं, और 10 के आगे 25 सिफर लगा दीजिए, इतने स्टार सिस्टम मौजूद हैं। और सूरज एक स्टार सिस्टम है, और सूरज का साइज खुद इतना बड़ा है कि लाखों जमीनें उसके अंदर समा सकती हैं। जमीन की हैसियत इतनी है कि जितनी पूरे हॉल के अंदर अगर एक बारीक सा नुक्ता भी लगा दिया जाए कहीं दीवार के ऊपर, तो वो भी जमीन की हैसियत नहीं है, उससे भी कहीं कम दर्जे की जमीन की हैसियत है। और ये जमीन की हैसियत, अल्लाह ने जमीन को अकेला नहीं छोड़ा इंसानों को, अल्लाह ने पैगंबर भेजे और उनके जरिए रास्ता दिखाया, किताबें भेजी। लेकिन अफसोस कि इस दुनिया के इंसानों ने
बहुत कम अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल किया और ज्यादा अपने कवानीन तरतीब दिए, अपना एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जगह जगह, और जिसका नतीजा ये निकला कि आज दुनिया में हर तरफ जुल्म और ज्यादती है, तबाही है, हंगामा है, हर तरफ एक दूसरे से मुल्क टकरा रहे हैं। आसमान की तरफ देखिए कि इतना बड़ी कायनात, लेकिन 15 बिलियन ईयर्स के बावजूद वो बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। कोई सितारा दूसरे सितारे से नहीं टकरा रहा है, कोई प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से नहीं टकरा रहा है। वो सिस्टम आज भी उसी खूबी के साथ, बेहतरीन सिस्टम, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन कितना ज्यादा अल्लाह ने जो लॉज ऑफ फिजिक्स बनाए, अल्लाह ने जो लॉज ऑफ केमिस्ट्री बनाए, वो सब इतनी खूबी के साथ काम कर रहे हैं कि उसके सारी कायनात बखूबी चल रही है। लेकिन जमीन में चूंकि अल्लाह ने इंसानों को ये ताकत दी, इंसानों को बाकी सारी कायनात के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सितारे हैं, उन सबको अल्लाह ने यह हक नहीं दिया कि वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम कर सके। वो सारे के सारे वलिल्लाह यस्जुदु मा फिस समावाति वल अर्द, वो सारे के सारे अल्लाह को सजदा कर रहे हैं घूमकर, वो सारे के सारे तस्बीह कर रहे हैं अल्लाह की, अल्लाह के कवानीन के एतबार से चल रहे हैं। उनके अंदर वो अनकॉन्शियसली अल्लाह के अहकामात की तामील कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि पूरी कायनात के अंदर अजीब और गरीब मुनज़्ज़म एक निज़ाम चल रहा है। लेकिन इंसान को अल्लाह ने ये इख्तियार दे दिया कि वो अगर चाहे तो अल्लाह के कवानीन के साथ के ऊपर अमल करे, और अगर चाहे तो अल्लाह के कवानीन के खिलाफ मर्जी करे। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह के वजूद से इनकार भी करने का आप उसको दे दिया, और उसका नतीजा ये निकला जो जमीन के अंदर देखा आपने कि चारों तरफ एक अजीब और गरीब किस्म का हंगामा। दुनिया के अंदर आपको मालूम है हर साल पिछले तकरीबन 150 सालों के अंदर दुनिया के अंदर जंगों के अंदर तकरीबन 20 करोड़ लोगों को मारा जा चुका है। दुनिया के अंदर हर साल कमोबेश 20 लाख मर्डर्स होते हैं, और ये मर्डर्स से कहीं ज्यादा तकरीबन 200 यानी 2 करोड़ लोगों को मर्डर करने की कोशिश की जाती है। उनमें चूंकि हॉस्पिटल्स कायम हो गए हैं तो बहुत सारों को गोली लगती है, बच जाते हैं, लेकिन जो मर जाते हैं उनकी तादाद 20 लाख के करीब है। 7.5 लाख के करीब लोग सुसाइड कर लेते हैं। 2.5 लाख औरतों की इज्जत लूट ली जाती है। जितने बड़े जो सो कॉल्ड सिविलाइज कंट्रीज हैं, जितना बड़ा कंट्री जितना सिविलाइज होने का दावा और एडवांस कंट्री होने का दावा कर रहा है, वहां पर उतनी ही ज्यादा बर्बादी। मैं आज अमेरिका अपना आप को समझता है कि दुनिया का बादशाह है, वो जुल्म और ज्यादती की हुदूद को क्रॉस कर चुका है। और मैं अमेरिका के बारे में बताऊं कि दुनिया में मर्डर्स का जो रेशो है वो मैक्सिमम अमेरिका के अंदर है। अमेरिका में हर साल तकरीबन 16,000 लोगों को मास शूटिंग के अंदर मार डाला जाता है। उसके बरक्स सऊदी अरब, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सऊदी अरब का निजाम उस तरह इस्लामी जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी बुनियादी तौर पर एक इस्लामी अहकामात नाफिज हैं। उसका नतीजा यह है कि सऊदी अरब के अंदर मुश्किल से हर साल जो रेशो है वो 380 का रेशो है कि उतने मर्डर्स होते हैं। उनमें से जो जिम्मेदार होते हैं उनको फांसी की सजा दी जाती है। तो वो तादाद अगर उससे मुवाजना किया जाए अमेरिका से पॉपुलेशन के एतबार से तो तकरीबन 1:10 का डिफरेंस है। और अमेरिका में चूंकि अस्पताल का निज़ाम ज़्यादा मजबूत है, वहाँ काफ़ी लोगों को मर्डर्स को बचा लिया जाता है। तो वो जो फ़र्क है मर्डर्स अशोर्ट्स का, वो 1:80 का फ़र्क है। दुनिया में ये दुनिया में एक दावा किया जाता है कि साहब हमने औरतों को आज़ाद कर दिया है, आज़ादी का एक निज़ाम कायम औरतों के लिए कर दिया है, औरतें हर तरीके से आज़ाद हैं। दुनिया में 7 करोड़ औरतें प्रोस्टिट्यूशन के अंदर मुब्तला हैं, उनको प्रोस्टिट्यूशन में शिकार कर दिया है। जिसको वो औरत की आजादी कह रहे हैं वो असल में मर्दों की आजादी। औरत बेरहना होती है तो मर्द लूटता है, औरत की आजादी होती है तो मर्द मजे लेता है, और वो औरत बेचारी तड़पती है। अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो वो होती है और अबॉर्शन कराती फिरती है। दुनिया के अंदर हर साल तकरीबन 7 करोड़ से 10 करोड़ तक की तादाद में बच्चों को माँ के पेट के अंदर कत्ल कर दिया जाता है, चूंकि उनके माँ बाप अय्याशी के जरिए उनके ताल्लुकात थे। तो दुनिया के अंदर अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर और यूरोप में 40 से लेकर 70% औरतें बच्चे जो हैं वो शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं, उनको माएँ अकेले पाल रही हैं। अब बताइए, इसको कह रहे हैं वो औरत की आज़ादी। और जिसको इस्लाम में पाबंदी कहते हैं औरत की, वो असल में मर्दों के ऊपर पाबंदी है कि मर्द उनका इस्तेहसाल नहीं कर सकते,
मर्द उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऐसा अजीब और गरीब अल्लाह ने निज़ाम पैदा किया है कि जिसमें मर्द और औरतों की सेहत पूरी तरीके से मजबूत है, उनका पूरा का पूरी उनका सिस्टम, लॉ सिस्टम, लीगल सिस्टम पूरी की तरह पूरा मजबूत है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले खास तौर पर 300-400 साल के दौरान में जो एक नया सिस्टम क्रिएट हुआ है पूरे वर्ल्ड में, अगर आप ये समझते हैं कि ये साइंस का दौर है, चूंकि बात कही जाती है कि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ साइंसेस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ साइंसेस, सो मेनी ह्यूज डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज द काइंड ऑफ द इंप्रेशन दे आर ट्राइंग टू गिव, बट रियलिटी में साइंस का दौर नहीं है। अगर कोई समझता है कि एथिक्स का दौर है तो जाहिर एथिक्स का दौर नहीं है, और रिलीजन को तो बिल्कुल बाहर करने की कोशिश की जाती रही है, वो पूरी तरह हो नहीं पाता, लेकिन देयर आर सो मेनी कंट्रीज वेयर इट इज हार्डली एग्जिस्टेंट। तो वो सारा का सारा, अगर कोई चीज इस दुनिया में डोमिनेंट है तो वो है इकोनॉमिक्स। दिस इज द इकोनॉमिक्स विच रूल्स द वर्ल्ड। और वो इकोनॉमिक्स में भी खास तौर पर बाजार की कुव्वतें और पॉलिटिकल फोर्सेस वो मिलकर काम करती हैं। और उन्होंने जो निज़ाम क्रिएट किया है, उन्होंने एक के बाद एक पूरा हर सिस्टम, उन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट किया कि जिसमें उन्होंने, कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। हकीकत में क्या है? मेरी किताब का इजरा हो रहा था दिल्ली के अंदर, 2011 की बात है। मेरे तमाम स्टेज पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स मौजूद थे, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, इस तरह के लोग मौजूद थे। बट ऑन द स्टेज मैंने कहा था, मैंने कहा भाई ये जिसको आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी, दिस इज द डेमोक्रेसी इज डिस्क्राइब्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बट टुडे डेमोक्रेसी हैज बिकम कॉर्पोरेटोक्रेसी, which is the government of the corporate, run by the agents of the corporate and for the corporates. सिर्फ बड़ी मार्केट फोर्सेस तय करती हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो पहले शराब को बेचकर पैसा कमाते हैं, और जब उससे बीमारियां पैदा होती हैं, हर साल तकरीबन 40 लाख लोग शराब की वजह से मर जाते हैं, और कम से कम 1 करोड़ लोग और ऐसे हैं कि जो शराब से इनडायरेक्टली, शराब की वजह से मरते हैं, या तो वो मर्डर्स कर दिए जाते हैं या सुसाइड्स कर लेते हैं, या बहुत सारे लोग शराब की वजह से सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीजेज में मुब्तला हो जाते हैं, उसकी वजह से मरते हैं। तो शराब की वजह से इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन शराब बेचकर पैसा कमाना है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद जब बीमारियां होती, कहते हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं साहब, हॉस्पिटल जाइए, एक इलाज मौजूद है आपको, बस जरा सा थोड़ी सी कम पीजिए, बहुत ज्यादा ना पीजिए। और उन्हें पता है अंदर से मन ये कर रहा है कि खूब पिए, ताकि फिर ये शराब भी बिकेगी और खूब फिर इलाज भी बिकेगा, दोनों चीजों को बेचना है। पहले ड्रग्स भेजी जाती हैं, फिर ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश किए जाते हैं, दोनों के अंदर कमाई है। सेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से मार्केट बन गया है, उसको बेचकर बेइंतहा पैसा कमाया जाता है। तमाम नाइट क्लब्स खुले हुए हैं, प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे खुले हुए हैं, पोर्नोग्राफी हो रही है। और उसके बाद में फिर जब उससे बीमारियां पैदा होती हैं तो कहते हैं कि हमारे भैया अस्पताल मौजूद हैं, आइए वहां पर अब तो हमने एड्स का ट्रीटमेंट भी निकाल लिया है, एंटीवायरल थेरेपी हमको मिल गई है। हकीकत यह है कि एड्स से पिछले 30 साल के अंदर 6 करोड़ लोग मर चुके हैं दुनिया में, 6 करोड़ लोग। और आज भी एड्स से दावा यह किया जा रहा है कि हमने एंटीवायरल थेरेपी, लेकिन आज तक सिर्फ 2 लोगों को यह दावा किया गया है कि 2 लोग एड्स उस एंटीवायरल थेरेपी से ठीक हुए हैं। बाकी सारे के सारे लोग, बस इतना होता है कि उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती, इतना फायदा होता है, लेकिन उसके बावजूद फैलाया जा रहा है पूरे उसको सिस्टम को फैलाया जा रहा है। तो ये एक किस्म का फिर उन्होंने और कहा क्या काम किया, उन्होंने साइंस क्रिएट की, लेकिन साइंस में उन्होंने खास तौर पर, क्योंकि फिजिक्स में ये सवाल पैदा होता है कि भाई यूनिवर्स किसने क्रिएट किया, ये तो उन्होंने बाकायदा 1930 के आसपास एक मीटिंग की दुनिया में, और ये कहा गया कि तमाम जो कायनात किस तरह तख्लीक हुई, इसके सिलसिले में जब हम तहकीक करेंगे तो हम खुदा का जिक्र ना लाएं बीच, ये बाकायदा तय किया गया। और चुनाचे स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, क्योंकि आइंस्टाइन ने कम से कम यह माना कि खुदा ने ओरिजिनल वे में खुदा ने एक सिग्नल दिया था तख्लीक का। हालांकि आइंस्टाइन की थ्योरी में यह है कि बाकी फिर बाद में खुदा की जरूरत नहीं रही, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने तो यह कहा कि उसको ओरिजिनल सिग्नल की भी जरूरत नहीं, इसलिए स्टीफन हॉकिंग को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि साहब उससे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है, उसकी किताब जबरदस्त मकबूल कर दी गई, उससे बड़ा कोई साइंस नहीं है। और जो है एक अजीब और गरीब थ्योरी पेश की गई, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, जिसमें कहा गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैन, इंसान की तख्लीक का असल मकसद क्या है, ये कहा गया।
और उसमें उन्होंने ये नहीं कहा गया कि तख्लीक की गई, बल्कि तख्लीक हो गई। और उसमें दो तरह के वो आए, एक स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल और एक वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल में कहा गया कि ये कायनात में इंसान की जो तख्लीक हुई वो वेल डिजाइन, परफेक्टली डिजाइन, प्री डिजाइंड एक पूरा तरीका था, जिसके नतीजे के तौर पर अल्टीमेटली एक इंसान की तख्लीक हो गई। उसको उठाकर एक तरफ रख दिया गया, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं इशारा मिलता है कि अगर प्रीवियसली डिजाइन है तो जाहिर है कोई डिजाइन करने वाला होगा। तो उसके बाद में वीक थ्योरी पेश की गई, और वीक थ्योरी का एक वो निकाला ये गया कि जिसमें कहा गया कि इंसान को इसलिए इंसान पैदा हो गया कि चूंकि अगर इंसान पैदा ना होता तो इस कायनात की खूबसूरती को बयान करने वाला कोई ना होता। इसका असल एंथ्रोपिक प्रिंसिपल क्या है, असल पर्पस ऑफ द क्रिएशन क्या है, वो कुरान ने पेश किया है, जिसको मैंने कुरानिक वर्जन ऑफ एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का ट्रू वर्जन, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि अल्लाह की इबादत करें। अब ये लफ्ज अब्दियत भी बड़ा मखसूस एक लफ्ज है, लेकिन कुरान पाक का आप मुताला करेंगे तो ये पता चलेगा कि वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस, हर चीज कायनात के अंदर सजदा कर रही है अल्लाह को, हर चीज अल्लाह को तस्बीह कर रही है। जब फरिश्तों का जिक्र आता है तो उसमें यह भी आता है कि वो तकदीस करते हैं अल्लाह की, और हमद ज़ाहिर है पूरी कायनात कर रही है। लेकिन अब्दियत का लफ्ज मखसूस है सिर्फ इंसान और जिन्नों के लिए, और वो फर्क वही है कि इंसान और जिन एक कॉन्शियस लेवल पर सोच कर अल्लाह की इबादत करते हैं, उन्हें ये भी हक हासिल है कि ना करें, लेकिन उसके बावजूद जब वो अल्लाह की इबादत करते हैं तो वो अशरफुल मखलूक़ात बन जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल पर, वो सिर्फ फितरी तौर पर नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्शियस लेवल के ऊपर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, इसलिए वो उस अशरफुल मखलूक़ात का उनको दर्जा मिलता है। इसीलिए वो खलीफा, अल्लाह के खलीफा जमीन में उनको ठहराया जाता है कि तुम्हें अल्लाह का खलीफा, तुम अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक जमीन को चलाओ। लेकिन अफसोस नहीं चला गया अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक जमीन को, जिसकी वजह से जमीन में हर तरफ तबाही है, हर तरफ। जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया उनकी वजह से हर साल तकरीबन 10 करोड़ से 11 करोड़ अमवात होती है। बताइए, दीज आर नॉट स्मॉल फिगर्स, तो मामूली फिगर्स नहीं है ये। अभी कोविड का कितना बड़ा शोर मचा। कोविड में पिछले 150 साल में जितने भी एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स फैले हैं, डॉक्टर्स तो सब समझते हैं, आप जो हजरात डॉक्टर मेडिकल नेम को जरा समझा दो कि एपिडेमिक कहते हैं जरा थोड़े एरिया के अंदर जो बीमारी फैलती है, पेंडेमिक का मतलब होता है पूरी दुनिया में फैल गई बीमारी। तो वो जो इस तरह की जो बीमारियां हुई हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक कहीं ना कहीं इस्लाम के खिलाफ वर्जी से। सबसे ज्यादा जो जिस बीमारी ने तबाही मचाई है दुनिया के अंदर पिछले 150 साल में, वो स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू की वजह से 20 करोड़ अमवात हुई हैं, 20 करोड़ लोग मरे हैं। और स्वाइन फ्लू उन इलाकों में होता है जहां पर सूअर का गोश्त खाया जाता है, पिग फार्मिंग होती है, तो उसकी वजह से वो बीमारी फैलती है। सूअर के गोश्त के खाने से और भी बीमारियां पैदा होती हैं। कई तरह के कीड़े हैं, टीनिया सोलियम है, ट्राइकेनियल स्पाइरलिस है, जो सूअर के खाने से पैदा होते हैं, जिसकी वजह से कई बार बदन में पैरालिसिस भी हो जाता है और कई बार मौत भी हो जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक स्वाइन फ्लू। दूसरी जो खतरनाक बीमारी एड्स की, जो तमाम जिनसी बेरादरी की वजह से पैदा हुई। एड्स से पहले भी सिफिलिस ने करोड़ों लोगों की जान ली, और एड्स ने, मैंने जैसा कि आपको बताया कि पिछले 30 साल में तकरीबन 5 से 6 करोड़ लोग जो है एड्स का शिकार हो चुके हैं। वो जिनसी बहरारा भी, उसमें भी खास तौर पर जिस चीज को आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, होमोसेक्सुअलिटी, कि वो सबसे खतरनाक चीज थी उसकी। और यहीं पर जो है फिर एक बीमारी रेबीज की भी पैदा हुई, जिसकी वजह से 50-60 लोग मर चुके हैं पिछले तकरीबन 40-50 साल में। वो कुत्तों को काटने की वजह से होती है। इस्लाम में ये कहा गया, हदीस में मौजूद है कि कुत्तों का डोमेस्टिकेशन मत करो, घर के आसपास कुत्ते नहीं रहना चाहिए। उस पर रह सकते हैं वो, यानी बाहर जहाँ कोई चौकीदारी का मकसद हो, लेकिन घर के आसपास। उसकी वजह से बड़ी तादाद में रेबीज जो बीमारी पैदा होती है, आज तक उसका कोई इलाज नहीं है, 100% फर्टिलिटी है। उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां, सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीजेस पैदा हुई हैं, जिनकी वजह से करोड़ लोगों की जान जा चुकी है। आजकल एक नई बीमारी बड़ी, उसमें अभी मोदी जी अमेरिका गए थे, उन्होंने बाकायदा वहां पर एक एग्रीमेंट साइन करने की बात की है, जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर कार्सिनोमा।
सर्विक्स एक औरत के जिसमें अंदर एक सर्विक्स एक हिस्सा होता है, उसका कैंसर होता है, कैंसर सर्विक्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दुनिया में, और इंडिया में तकरीबन 1.5 लाख औरतें हर साल उसका शिकार हो रही हैं। और ये बीमारी मुस्लिम औरतों के अंदर नाम के बराबर होती है, बिल्कुल नाम ना के बराबर होती है, गैर मुस्लिम उस औरतों में होती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मर्दों का मखसून होना है, सर्कमसीजन होना है। तो सर्कमसीजन एक बहुत बड़ी वजह बन गया है। एक जो है, मैंने जब मेरी 1995 में एक किताब पहले आई थी, मुझे एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर ललित मोहन नाथ का एक लेटर आया उस जमाने में, वो जो है एम्स के डायरेक्टर थे और कम्युनिटी मेडिसिन के हेड भी थे। उनका लेटर आया कि जिस तरह की आपने एक दूसरी किताब लिखी है, मैं चाहता हूं कि आप एड्स पर भी एक इस तरह का किताब लिखें, क्योंकि आजकल एड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो उस वक्त मैंने इस्लामिक मॉडल फॉर कंट्रोल ऑफ एड्स एक किताब मेरी सामने आई, लिखी मैंने। सिर्फ उन्होंने जो मुझे टाइम दिया था, वो तो कहा था कि आप आराम से लिखिए, लेकिन अल्लाह का करम होता है, जब मैं लिखने बैठता हूँ तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। मुश्किल से 2 महीने में वो किताब हो गई। और जब वो मैं किताब का मसवदा उनके पास लेकर पहुंचा, तो वो जब किताब का मसवदा पलटने लगे और उन्होंने खास तौर पर जो मॉडल देखा जिसमें मैंने पॉइंट्स दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 12 पॉइंट्स थे, तो एकदम से पढ़ के और वो उठे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। और उनके अल्फाज ये थे कि डॉक्टर साहब, मैंने सिर्फ ये सोचा था कि आप जिनसी बेरहमी के मुताल्लिक कुछ कुरान की आयत या कुछ हदीस वगैरह ऐसी नकल कर देंगे कि जिसकी वजह से जो कम से कम मुसलमान उन चीज़ों से बचे, और फिर हम दूसरे मज़हब वालों से भी कहेंगे कि अपने मज़हब के एतबार से वो इस तरह की चीज़ें लिखें। लेकिन आपने तो इसमें 2 बातें ऐसी लिखी हैं जो पूरी दुनिया को हैरत में डाल देंगी। मैं दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पहला इंसान था कि जिसने सर्कमसिजन को ये कहा था कि इसको एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहिए, और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 12 साल के बाद इस बात को मेरी माना। और ये बात अब साबित हो चुकी है कि तमाम सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज में सर्कमसिजन का एक बहुत रोल होता है कि वो उसको रोकती है। और उसके अलावा एक दूसरी बात मैंने कही थी उसमें इद्दत के ताल्लुक से, कि इस्लाम में एक इद्दत का तरीका है कि अगर डिवोर्स होती है, तलाक होती है, या शौहर मर जाता है, तो कम से कम 3 महीने इस तलाक केस में, और उसमें 4 महीने 10 दिन का वक्फा होता है। यानी कोई तरीका ऐसा नहीं है कि एक औरत का ताल्लुक 2 मर्दों से हो, कम से कम 3 महीने का वक्फा बीच में ना। बाकायदा मैंने फिर साबित किया कि जितनी भी सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीजेज है उनका एक इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब मैं समझा दूं आपको, कि जब जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं उसके बाद फौरन बीमारी पैदा नहीं होती, बल्कि कुछ वक्फे के बाद बीमारी सामने आती है। और वो वक्फा अलग अलग बीमारियों का अलग अलग होता है, किसी का 2-4 दिन होता है, किसी का 10-20 दिन होता है, किसी का महीने 2 महीने होता है। तो जितनी भी बीमारियां STDs की थी सिवाय एड्स से, उन सब का इंक्यूबेशन पीरियड 90 डेज से कम था। और एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड तो ज्यादा था, लेकिन विंडो पीरियड, यानी ब्लड में वो टेस्ट पॉजिटिव 90 डेज के अंदर अंदर आ जाएगा, यानी 90 डेज के अंदर अंदर ये पता चल जाएगा कि इसको एड्स है कि नहीं। तो मैंने ये बात कही उसमें कि आप जो है जितनी भी जो प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर टोटल बैन लग जाना चाहिए, और जितनी बेचारी औरतें हैं जिनको मजबूर किया गया है उन्हें उससे बाहर निकालें। और उसका तरीका यह हो कि उनको 3 महीने तक एक असाइलम में रखें, और फिर उनके टेस्ट वगैरह कराकर अगर उनको कोई बीमारी नहीं है तो उनकी शादियों को प्रमोट किया जाए, और अगर वो बीमारियों का शिकार है तो उसका इलाज किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने वजू और उसके ताल्लुक से मैं बात करना चाहता हूँ कि नमाज के ताल्लुक से जो बात की, ये बस अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती हैं, अल्लाह करम करता है। अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया। जब मैं MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, और सब मेरी उम्र भी मुश्किल से 19 साल थी, 1977 या 78 की बात है, 78 की बात है, तो मेडिकल कॉलेज में हमें ब्रेन एनाटॉमी पढ़ाई जा रही थी। और ब्रेन एनाटॉमी में यहाँ जो सामने का पोर्शन होता है इसे सेरिब्रम कहते हैं, और इसके अंदर एक मखसूस जगह होती है जिसे पोस्ट सेंट्रल गाइरस होता है। वो सेंट्रल गाइरस जो है बॉडी का तमाम जो सेंसरी सिस्टम है, यानी जैसे हमने छुआ तो ये जो छूने से जो सेंसेशन पैदा होती है वो दिमाग को पहुंचती है, दिमाग उसे कंट्रोल करता है। गर्मी, सर्दी, इस तरह के जितने सेंसेशन है उनको सब वो कंट्रोल करता है। तो उसमें वो बाकायदा हर उसका बदन के हिस्से का एक हिस्सा मुकर्रर होता है, ऊपर नीचे तक वो उसकी एक तरतीब है। तो जब वो तरतीब देखी तो मैं एकदम चौंका। वो तरतीब एग्जैक्टली वो थी जो तरतीब हम वजू के अंदर फॉलो करते हैं।
और मैं लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी से जितनी किताबें उस सिलसिले में निकाल सकता था मैंने निकाल ली हैं। और उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा आर्टिकल लिखा, एनाटॉमिकल एनालिसिस ऑफ वजू, जिसमें मैंने दिखाया कि जो है उसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे हम अगर एकदम से पानी ठंडा ले लेंगे तो पहले से बॉडी तैयार हो जाएगी, फिर अगला हिस्सा जो है तो उस तरह, और उसका हर हिस्से का एक वो भी यानी उसका कितना बड़ा मकाम है ये भी तय है। अगर आप अपने मोबाइल पर गूगल करें लफ्ज होमनक्यूलस, HOMUNCULUS, होमनक्यूलस में वो करें तो आपको एक इमेज निकालेंगे तो एक इमेज बड़ी खतरनाक सी मिलेगी आपको। और वो इमेज बड़ी खतरनाक, वो इमेज वो है जो इंसान की इमेज ब्रेन के अंदर होती है। उसमें जबान इतनी बड़ी मिलेगी आपको, मुंह इतना बड़ा मिलेगा आपको, हाथ इतने बड़े मिलेंगे, बाहें इतनी बड़ी मिलेंगी, बाकी ये जो बदन का हिस्सा जरा सा मिलेगा आपको, और पैर भी थोड़े बड़े मिलेंगे। तो गोया जिन चीजों का सेंसरी सिस्टम में बहुत स्ट्रांग है, तयम्मुम में और वजू में जिन दो चीजों का इस्तेमाल होता है, मुंह और हाथ, वो वहां पर सबसे बड़े हैं। और जिन चीजों का वजू में इस्तेमाल होता है, पैर भी, वो उसके मुकाबले में निस्बतन छोटे हैं, लेकिन वो भी अच्छा खासा बड़े हैं। और जो वजू में नहीं होते हिस्से, वो बहुत मुख्तसर है। तो यानी वजू बाहर से तो तकरीबन 15-20% हिस्सा ही कवर करती है, लेकिन दिमाग के अंदर वो 80-85% के करीब का कवर कर लेती है। उसके बाद अगला साल आया जब मेडिकल कॉलेज का, तो वहां पर उस जमाने में, अब तो शायद पता नहीं मेडिकल कॉलेज में MBBS में पढ़ाई जाता नहीं पढ़ाई जाता, एक चीज पढ़ाई जाती थी डेक्यूबिटस। और डेक्यूबिटस का मतलब ये होता था कि इंसान किस हालत में रहता है, अक्सर उसकी हालत को देखकर हमसे कहा जाता था कि इसको डायग्नोसिस करने की कोशिश कीजिए आप। इसमें कई बार मैं एक लतीफा सुनाया करता हूँ, लतीफा है, और वो लतीफा ये है कि ये दो डॉक्टर्स खड़े थे आपस में, उन्होंने देखा एक दूर से आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है। उनमें आपस में बहस शुरू हो गई कि बताओ इसको क्या बीमारी है। एक ने कहा कि इसकी कूल्हे की हड्डी टूटी हुई होगी, दूसरे ने कहा कि नहीं कूल्हे की नहीं, लगता है कि इसके जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है। फिर एक ने कहा कि नहीं, हो सकता है इसके नीचे की हड्डी टूटी हुई हो। इतने में वो आदमी करीब आ गया, तो उन्होंने कहा कि चलो उसी से पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारी कौन सी हड्डी टूटी है। अरे भाई मेरी तो कोई सी भी हड्डी नहीं टूटी, मेरी तो चप्पल की पट्टी टूट गई। तो डेक्यूबिटस में ये होता है कि भाई आदमी किस, तो उसी डेक्यूबिटस में 15-16 पोजीशंस बताई जाती थी, उनमें से एक पोजीशन का नाम उस जमाने में आजकल मुझको मालूम नहीं, मोमेंटस प्रेयर पोजीशन कहा जाता है। और वो पोजीशन जो हम सजदे की पोजीशन होती है, तकरीबन वो पोजीशन होती थी। और उसमें हमको ये बताया गया है कि हमारे प्रोफेसर थे चक्रवर्ती, उन्होंने बताया कि साहब इस पोजीशन के अंदर अगर आदमी को कार्डियोमेगेली है, हार्ट की बीमारियां, बहुत सारी कार्डियोमायोपैथी है, या स्प्लीन की बीमारियां हैं, या लिवर की बीमारियां हैं, तो अक्सर आदमी सजदे की पोजीशन में अपने आप को रखने की कोशिश करता है, यूं झुका रहता था। अब फिर मैं चौंका, अब फिर तजस्सुस हुआ दिमाग में, बस उन्होंने तो इतना कहा और आगे निकल गए। अब मैंने सोचा कि क्या किया जाए। मैं पहले 1-2 किताबें तलाश करने की कोशिश की, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर मैं खुद प्रोफेसर चक्रवर्ती के ऑफिस में पहुंचा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आपने इतना तो बता दिया, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने मुझे को समझाया कि देखो सजदे की पोजीशन ऐसी होती है कि जिसमें इंसान की जो कार्डियक आउटपुट है, यानी जो हार्ट जो सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है बेहतरीन अंदाज में, वो इस पोजीशन में होता है। इस पोजीशन के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ब्लड में सबसे ज्यादा होती है, और इस पोजीशन में दिमाग की तरफ जो ब्लड की सप्लाई होती है वो अपने बेस्ट मकाम पर होती है। तो फिर मैंने उसके एनाटॉमिकल एनालिसिस भी लिखा कि कौन कौन सी नर्व इस्तेमाल होती है जब हम हाथ उठाते हैं, ये जाते हैं। वहां भी मुझे ये नजर आया कि एक बाकायदा एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले फेशियल नर्व इस्तेमाल हो रही हैं, फिर सर्वाइकल नर्व, फिर थोरेसिक नर्व, फिर जो है नीचे एब्डोमिनल नर्व, वो सब इस्तेमाल हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा एक दूसरा आर्टिकल मेडिकल एनालिसिस ऑफ वुजू, ये आर्टिकल्स पहले रेडियंस के शाये हुए, फिर लंदन में एक इम्पैक्ट मैगजीन से निकले, फिर तो बहुत जगहों पर इसको रिपीट किया गया इन आर्टिकल्स को अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहीं से एक सिलसिला मेरा शुरू हो गया था इस तरह की तहकीकात का। फिर मेरा एक आर्टिकल, चूंकि उस जमाने में 1980 के आसपास इस पर्सनल लॉ को लेकर बड़ी बहसें चल रही थी, तो पोलीगेमी के ऊपर बहस होती थी, तो मेरा आर्टिकल आया प्रोमिस्क्यूटी वर्सेस पोलीगेमी। क्योंकि मेरा मिजाज ये है कि मैं सिर्फ डिफेंड नहीं करता हूँ बल्कि काउंटर अटैक भी करता हूँ। तो भाई अपने से फर्क कीजिए, आप हम पर अटैक कर रहे हैं, अपने जरा सा हालात देखिए।
तो मैंने उसमें दिखाया कि पॉलीगैमी में तो सिर्फ एक मर्द मैक्सिमम 4 औरतों से उसके ताल्लुक हो सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो प्रोमिस्क्यूटी फैली हुई है उसमें एक मर्द के ताल्लुक सैकड़ों औरतों से भी हो सकते हैं, और वो सैकड़ों औरतें अपने अपने तरीके से सैकड़ों मर्दों से ताल्लुक रख सकते हैं। ये अमेरिका की रिसर्च है कि अमेरिका में 93% लोग बैक वक्त उनके ताल्लुक मल्टीपल मर्दों या मल्टीपल औरतों से होते हैं। लेकिन इस्लाम में जो तरीका है पॉलीगैमी का, उसमें चूंकि आबादी का तनासुब जितना होगा, आमतौर पर आबादी का तनासुब बहुत मुख्तसर तरीन मेल और फीमेल में जो डिफरेंस होता है बहुत मामूली होता है, पहले वो भी अब कम होता चला जा रहा है। तो अगर 4 गुना औरतें हैं ही नहीं तो जाहिर है 4 गुना मर्द शादी कहाँ कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए बहुत कम मर्द ही अगर चाहें भी सब तो तब भी ऐसा बहुत कम मुमकिन है। और उसके जाहिर है पॉलीगैमी की कई मरतबा वजूहात भी होती हैं, आदमी की किसी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है या कोई और वजह है, बहुत सारी वजूहात भी होती है जिसकी वजह से उसको इस बात की इजाज़त दी जाती है। लेकिन पॉलीगैमी से किसी बीमारी का अंदेशा नहीं है, जबकि प्रोमिस्क्यूटी से दुनिया भर की बीमारियां पैदा होती हैं। पॉलीगैमी में तमाम औरतों के इख्तियारात पूरी तरह मौजूद रहते हैं, लेकिन उस प्रोमिस्क्यूटी के अंदर उन औरतों के कोई इख्तियारात नहीं। वो अगर प्रेग्नेंट हो रहे हैं उनकी अपनी मर्जी, अपना अबॉर्शन कराती फिरें, अपना बच्चा हो रहा है तो बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट वो पालती फिरेगी। और इसे कहते हैं वो आज़ादी। साहब देखिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये बहुत चीज़ मशहूर हो गई आजकल, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस। मैं बेंगलोर में, मुझको बुलाया गया, बेंगलोर के अंदर एक बड़ा व्हाइटफील्ड चर्च में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सेमिनार था, पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए थे, हिंदुस्तान से जिन 2-3 लोगों को बुलाया गया था, इत्तेफाक से मैं भी था उनमें। और तो उसमें एक मेरे उसके बाद में जो इंटरेक्शन हो रहा था उसमें एक खातून खड़ी हुई जेनेवा से आई हुई थी, और उसने कहा कि साहब हम यूरोप में रहते हैं, हम रात को देखते हैं कि होटल में खाना खाने हम जाते हैं, थोड़ी देर बाद एकदम शोर शराबा शुरू होता है, एक लेडी आती है वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है कि हम क्रिश्चियन हैं, हमें भी बुरा लगता है, लेकिन ये तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इसको क्या कहा जाए, उसकी मर्जी, अपनी मर्जी है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस अच्छी चीज, कुरान में भी बहुत सारी फ्रीडम ऑफ चॉइस, इस्लाम में भी और क्रिश्चियनिटी में भी मौजूद है, लेकिन कौन सी फ्रीडम ऑफ चॉइस। मैंने कहा मैं मिसाल देता हूँ कि एक सुबह के नाश्ते की टेबल पर घर के सारे अफराद जमा हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद है, और वो जो है उनके सामने चाय रखी है, दूध रखा है, कॉफ़ी रखी है, मैंगो जूस रखा है, और चीज़ें इस तरह की रखी हैं। बात समझ में आती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लेकिन उन इसी के बीच में चरस भी रखा है, गांजा भी रखा है, शराब भी रखी है, वाइन भी रखी है। क्या इसे आप फ्रीडम ऑफ चॉइस कहें? फ्रीडम ऑफ चॉइस इस्लाम के अंदर सिर्फ फ्रीडम ऑफ गुड चॉइसेस है। We have to give freedom of good choices only, not unhealthy choices. लेकिन आज की दुनिया ने अनहेल्दी चॉइसेस दुनिया को देकर तमाम दुनिया को बर्बादी की तरफ, बर्बादी के किनारे पर ले। इस्लाम की खूबी यह है कि इस्लाम में एक बाकी जो पूरी दुनिया के आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहुत जोर होगा। कहीं कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज का भी एक छोटा सा कहीं एक चैप्टर मिल जाएगा। फंडामेंटल प्रोविजंस नाम की कोई चीज किसी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं, लेकिन इस्लाम की खूबी यह है कि इस्लाम गिव्स अ 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, वेयर फ्रीडम ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल प्रोहिबिशन तीनों बराबर हैसियत रखते हैं। अल्लाह ने यह भी बताया कि क्या तुम्हारे हक है, क्या तुम्हारे लिए हलाल है, क्या तुम कर सकते हो। अल्लाह ने ये भी बताया कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है, ये तुम्हें हर हाल में करना है, अगर नहीं करोगे तो गुनाह में मुब्तला होगे। और अल्लाह ने ये भी बताया कि ये चीज़ ऐसी हैं कि तुम्हें किसी हालत में करने की इजाज़त नहीं है, अगर करोगे तो गुनाहगार भी होंगे, अगर इस्लामी कानून है तो तुम्हें सज़ा भी मिल सकती है, वरना अल्लाह के यहाँ तो सज़ा मिलनी ही मिलनी। और उसकी वजह से जो बीमारियाँ पैदा होंगी उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और यही एक बड़ा अजीब इत्तफाक है कि जब हजरत लूत की कौम को पूरी तरह तबाह बर्बाद किया गया, और आपको सबको पता है कि क्या वजूहत थी। इत्तफाक ये भी देखिए, जो मैं सरकमसीजन की बात कर रहा था, तो उसी के फौरन बाद सरकमसीजन को स्टार्ट किया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सरकमसीजन बिल्कुल उसके थोड़े दिन के बाद ही हुई, जबकि हजरत इब्राहिम की उम्र उस वक्त तकरीबन बाइबल के हिसाब से 99 साल थी, और हजरत
इस्माइल की उम्र तकरीबन 8 या 9 साल थी, बाइबल में जो लिखा है। तो अल्लाह ने जो पूरा निज़ाम तरतीब दिया, वो पूरा निज़ाम ऐसा तरतीब दिया कि जिसका मकसद दुनिया के अंदर इंसान की सेहत को मजबूत करना, कवानीन बिल्कुल मजबूत रहें तो दुनिया में क्राइम्स ना हो, दुनिया में मर्डर्स ना हो, रेप्स ना हो, एक दूसरे के हुकूक की पामाली ना हो, ऐसे कवानीन बनाए। और ये कि अल्लाह के जो कवानीन की अल्लाह की वजह से, अल्लाह की इताअत की वजह से जो उसको करते हैं, उनको वादा किया कि तुम्हारे मरने के बाद भी पूरी की पूरी जो है। यहाँ पे एक और दिलचस्प मुझे वाकया मरने के ऊपर याद आया कि चूंकि ये जो खास तौर पर जो अथीस्ट हैं और कम्युनिस्ट हैं, ये तो अल्लाह को मानते नहीं हैं। तो और मुझसे एक ज़माने में, चूंकि एक ज़माने में एक अच्छा बड़ा हल्का हुआ करता था कि जो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तादाद बहुत कम हो गई है, जो देहरियों का बड़ा हल्का था जो गॉड को नहीं मानता था। एक मरतबा एक साहब मुझसे कहने लगे कि डॉक्टर साहब हमें एक बात बताइए, क्या सबूत है कि अल्लाह है और क्या सबूत है कि मौत के बाद में दूसरी लाइफ होगी। तो मैं ऐसे मुस्कुरा कर कहने लगा कि हाँ। मैंने कहा भाई ब्यास साहब, मेरे पास में कोई टेलीस्कोप नहीं है कि जिसे मैं आपको बिठा कर दिखाऊंगा, देखो वो बैठा अल्लाह। और जाहिर है आप मौत के बाद जिंदगी आएगी, वो फ्यूचर है, फ्यूचर को मैं दिखा नहीं सकता आपको। लेकिन मैं आपसे पलट कर एक सवाल करना चाहता हूँ, हाँ कीजिए। मैंने कहा आपके पास में क्या सबूत है कि अल्लाह नहीं है और मौत के बाद की जिंदगी नहीं है? मैंने कहा आप कह सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, यह बात भी सोचा उसने कि हाँ ये बात भी सही है कि भाई बिल्कुल पक्का तो हम भी नहीं कह सकते कि खुदा का वजूद नहीं है या मौत के बाद जिंदगी नहीं होगी। तो मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्रैग्मेटिक आदमी हूँ, मैं खतरात से नहीं खेलता। देखिए दुनिया में एक चीज पक्का है जिससे दुनिया का कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता, वो है मौत। सब मानते हैं कि अल्टीमेटली मरना है। मैंने कहा इस खुदा से इनकार करने वालों की बड़ी तादाद है, लेकिन मौत से इनकार करने वालों की तादाद नहीं मिलेगी। हर आदमी मानता है मरे। तो मैंने कहा भाई मरेंगे आप भी, मरूंगा मैं। मरने के बाद अगर खुदा ना निकला, अगर दूसरी जिंदगी ना आई, तो बस आप भी वैसे ही, मैं भी वैसा ही। हम मिट्टी में जैसे आप मिलेंगे, मैं भी मिल जाऊंगा, बात खत्म। लेकिन अगर कहीं खुदा निकल आया और दूसरी जिंदगी निकल आई तो आपका क्या होगा? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बच जाऊंगा। तो भैया मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। मेरे पूरी तरीके से बात समझ में आती है कि अल्लाह के वजूद के बगैर कायनात का वजूद मुमकिन ही नहीं। वो ये कहते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो इंसान अल्टीमेटली दुनिया बन गई है, इट इज आउट ऑफ कोइंसिडेंसेस। तो मैं एक जगह इसी तरह तकरीर कर रहा था, तो इसी तरह का हॉल था। तो मैं उनसे कहने लगा कि मैंने कहा हाँ भाई हुआ ये था कि ये हॉल, मैंने जब मालूम किया कि साहब ये हॉल कैसे बना, तो मुझे मालूम हुआ कि अचानक सब कुछ भी नहीं था, सब मिट्टी पड़ी थी चारों तरफ, और फिर अचानक खुद ही खुद मिट्टी साफ होने लगी। फिर खुद ही खुद पता नहीं कहाँ से कोई लाने वाला दिखाई भी नहीं दे रहा था, ईंटें आने लगी। फिर अचानक खुद ही खुद वो ईंटें फॉर्म लेने लगी। कोई नहीं था, मैं दूर दूर तक देख रहा था, कोई नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद वो ईंटें खास तौर पर बनने लगी, कमरे बनने लगे। फिर भी कोई नजर नहीं आ रहा था, कोई करने वाला नहीं था, कोई दूर दूर तक भी। फिर जो है छत बन गई, और फिर ये साहब इतना बड़ा चीज बन गया, लेकिन कोई दूर दूर तक। तो मैंने कहा ये अकल में समझ में आने वाली बात है क्या? मैंने कहा अगर आज का उनको माने तो उनका वो ये है कि ये सब मानते हैं कि जब कायनात बननी शुरू हुई तो सबसे पहले फिजिक्स और मैथमेटिक्स आया। लेकिन अगर इनकी माने तो फिजिक्स मैथमेटिक्स आ गया, लेकिन दुनिया में कोई दूर दूर तक ऐसा नहीं था जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स को समझता हो, जानता हो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर केमिस्ट्री आ गई, लेकिन कोई दूर दूर तक नहीं मौजूद था कि जो केमिस्ट्री जानता हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बायोलॉजी आ गई, कोई दूर दूर तक नहीं था जो बायोलॉजी समझता हो। फिर आखिर में इंसान आ गया, इंसान किस तरह पैदा होगा। आप जरा सा गौर करिए, अगर इंसान की पैदाइश ही कितना मर्द और औरत का ताल्लुक से किस तरह चीजें बढ़ती हैं, कुरान ने पूरा एम्ब्रियोलॉजी बयान की है, तब खुद हो गया। इससे ज्यादा अहमकाना बेवकूफी का तसव्वुर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बस उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में टेक्नोलॉजी है, तो बस वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया बेवकूफ़ बन रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बदल रहा है। आज दुनिया में पिछले कम से खास तौर पर 1970 के बाद में देहरियों की तादाद उतनी नहीं है जितनी पहले थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में भी इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ रहा है, मुसलमान इस्लाम की तरफ वापस आ रहे हैं।
ठीक है, बहुत सारी अभी अंदर हमारे अंदर कमियां मौजूद हैं, लेकिन पहले से बहुत निज़ाम के अंदर बहुत तब्दीलियां आ रही हैं। अब कहीं ज़्यादा नौजवान मस्जिदों में देखा जा सकता है, कहीं ना ज़्यादा नौजवान रोज़ा रखते हुए देखा जा सकता है, और इंशाअल्लाह एक के बाद एक बेहतरी आएगी। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा अपनी किताब के सिलसिले में आपसे बयान करना चाहता हूँ कि जो मेरी अभी हालिया किताब आई है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द होली कुरान, उसको हमने एक सिस्टमेटिक वे में मुनज़्ज़म तरीके से कुरान को समझने की और समझाने की कोशिश की है कि कुरान के जो मज़ामीन हैं, कुरान के जो अहकामात हैं, उनको एक तरतीबवार समझा जाए। तो उसमें 5 बड़े बड़े पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है फेथ यानी ईमानियात। उसमें सबसे पहले कुरान, सबसे पहले अल्लाह के ऊपर ईमान। तो अल्लाह के ऊपर एक इस्लाम में अल्लाह का तसव्वुर क्या है, गॉड का तसव्वुर क्या है, उसके ऊपर एक 3-4 सफ़ा